right? The recording is on and your session is formally recorded now, and I would make it available for everybody so that you can view it over and over again with YouTube channel. So it would need a bit time. I mean, the videos are a bit edited before making it publicly available. So you have to wait for it. So the students from 3 classes are present now. Right? And what is, the total strength of all 3 classes? I'm talking to the CS only. Sir, 48 students. 48 students Evening from B. evening B. And how about morning C and morning B? Morning D 43 students. 48 and 43, and the rest of the class? How about the third class? Yeah, but who is the CR of third class? Well, morning D. Which one is left? Morning D or morning C? Morning D 43 students. Yeah. Which one is the third class? I mean, which is that? Is it morning C? Morning C. Morning C, yeah. So how many students are in morning C? Sir, he is not वो picking my present call. नहीं था. No one is here for morning C. That's what you're talking? Yes, sir. Okay. Right. Let me share the screen. Here we go. This is topic today, the family and its social standing. I mean, how consumers, they learn from the family. I mean, what is the role of family in developing consumers' decision making about different products, about different services? And how does the role of children that evolve as a consumer? And how does family impact? And what is consumer socialization? Right. So these are the few learning objectives: to understand the consumer socialization, to understand how families make purchase decisions, and to understand the family life cycle. So this is the core topic for today's class. We probably have 2 sessions of 40 minutes each. So that's it. By the way, what did you know about family? If we are supposed to define family, what could be the possible definition? According to you, what is the concept of family in your mind? So anyone can let me know what is family? Anyone? Should I name the student I'm not talking to? Let me check. Right, Noman Shahid. Who is Noman Shahid? Roll number 19127. Yes, sir. Noman, what is family? What do you think? What's family? मैम सर ऐसे लोग जो आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हो. That's a family. A group of peoples. नहीं, आपका एक ग्रुप है आपके मोहल्लेदार के साथ, तीसरा ग्रुप मेंबर है आपका दोस्त, चौथा ग्रुप मेंबर है आपका कोई छठी क्लास का क्लास फेलो, तो यू आर फैमिली. या फिर सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ब्लड रिलेशंस पीपल्स. राइट, बिल्कुल सही है. तो फैमिली को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे. लेट मी शो यू. बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा कम करिए प्लीज. Family. The definition of family is 2 or more persons related by blood, marriage, or adoption residing together. So when 2, 3, 4, 5 people, at least more than 2 people, they are living together. Who are they? I mean, they have some kind of blood relationship, or I mean, there is some kind of contractual relationship like marriage, or there is some kind of adoption. So if these kind of people, they're living together, so that is considered as family, right? What is socialization? That's important concept for today's class. Socialization is what?
The process by which people learn how to behave in ways that are acceptable to other members of their society. That's socialization. I mean, this is how we can learn from society. The way we interact with other people, which are acceptable for each other, which are acceptable for the society. It means we are engaged in a process that's known as socialization. Right? So socialization is everywhere. I mean, when you were studying in class 5, you were engaged in socialization. So you have learned something from your primary school because you have interacted with your classmates, you have interacted with your friends, you have interacted with your family, you have interacted with your neighbors, right? And your behavior was acceptable to them and their behaviors were acceptable to you. So in overall, both of the behaviors, they were acceptable to the society. So this was how we were engaged, in socialization. समझ आ रही है? Yes, sir. चल ठीक है. तो ये सोशलाइजेशन है. अब कंज्यूमर सोशलाइजेशन इज द टॉपिक जिस पर हम बात करें. कंज्यूमर सोशलाइजेशन. अब कंज्यूमर कैसे सोशलाइज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, डिफरेंट सर्विसेज के साथ. वो कैसे अपना बाइंग बिहेवियर, अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस उसका बिल्ड होता है या वो डिज़ाइन करता है, वो कैसे लर्न करता है कि वो बिहेव कर सके एज अ कंज्यूमर. Right, this is consumer socialization. I mean, everyone is consumer. You are consumer, I am consumer, everybody is consumer. Whoever that is buying the product, whoever that is using the product, consuming the product, that is consumer. Right. अब जब आप छोटे थे तो आप अपने बाइंग डिसीजंस खुद नहीं किया करते थे. वही आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, आप अपने बड़े भाई के साथ जाते थे, बहन के साथ जाते थे, अंकल्स के साथ जाते थे जब आपने जूता खरीदना होता था, जब आपने शर्ट खरीदनी होती थी. ठीक है, तो आपने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं, आपने एज अ कंज्यूमर बिहेव करना सीखा है. सो दैट वाज योर सोशलाइजेशन एज कंज्यूमर. वही कि आपको ओरिएंटेट किया जा रहा है कि एक जो छोटा बच्चा है जब वो कंज्यूमर में कन्वर्ट होता है और वो किस तरीके से बिहेव करता है उस शॉपिंग डिसीजंस में, उस शॉपिंग एक्सपीरियंस में. तो ये वाला जो प्रोसेस है वो उसके लिए कंज्यूमर सोशलाइजेशन है. ठीक है. सो हाउ वुड यू फंक्शन एज अ कंज्यूमर? दैट इज सोशलाइजेशन. राइट. समझ आइए बात की कि नहीं भाई लोगों? यस सर, आ गई समझ. मतलब ठीक है ना, आप कंज्यूमर कैसे बने. ठीक है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं वो खरीदते चाहे खुद हैं, लेकिन उसके लिए पे शायद आपके फादर करते होंगे, आपकी फैमिली करती होगी. जब आप खैर से यहाँ से बीबीए कर लेंगे एंड यू विल बी डूइंग योर जॉब्स, तो फिर क्या होगा कि फिर आपका अपना पॉकेट, आपकी अपनी परचेजिंग पावर वो इस काबिल होगी कि आप सारे का सारा डिसीजन इंडिपेंडेंटली कर लेंगे. वो कोई कॉम्प्लेक्स शॉपिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आप उसको इंडिपेंडेंटली बाय करेंगे. फिर एक वक्त आएगा जब आपके पास अच्छी जॉब हो चुकी होगी, आप अपने कारोबार सेट कर चुके होंगे, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बड़े बड़े बाइंग डिसीजंस भी खुद कर रहे होंगे. आप अपनी गाड़ी खरीद रहे होंगे, राइट, आप महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद रहे होंगे, आप अपना महंगा जूता और ये सारी चीज़ें खरीद रहे होंगे. ठीक है. और उसके अलावा आप घर खरीद रहे होंगे, आप प्रॉपर्टीज़ बना रहे होंगे, आप लैंड खरीद रहे होंगे. वही तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एडल्ट हो चुके हैं और आपका कंज्यूमर सोशलाइजेशन का प्रोसेस बड़ा मैच्योर हो चुका हुआ है. राइट. और अब आप सारे के सारे अपने जो बाइंग डिसीजंस है वो खुद कर रहे हैं. सो अगर ये वाला स्टेज नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अभी कंज्यूमर सोशलाइजेशन का जो है प्रोसेस वो भी कंप्लीट नहीं हुआ. राइट. अब समझ में ये बात? भाई लोगों, सो तो नहीं गए ना? नहीं सर. सोशलाइजेशन एजेंट. वही. अच्छा, सोशलाइजेशन एजेंट वो है दैट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म टू सोशलाइज. राइट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं. फेसबुक इज़ द बिगेस्ट सोशलाइजेशन एजेंट. राइट. ठीक है, जितना भी आपका सोशल मीडिया है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशलाइजेशन एजेंट्स बिकॉज दैट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद एवरीबडी. राइट. आप किसी को फेसबुक पे गलत मैसेज करें, अगला बंदा आपको अनफ्रेंड कर देता है. राइट. वो एक गलत अंदाज में रिस्पॉन्ड करेगा.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो वाला जो एक्ट है दैट वाज अनएक्सेप्टेबल फॉर देम, राइट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए, उस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सोशलाइजेशन कर ही नहीं रहे। क्योंकि सोशलाइजेशन तो मतलब ये है कि आपने जब इंटरेक्ट करना है अपने फेलोज के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने मेट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर दैट। So that is socialization. Socialization agent is somebody, ठीक है। आपका फादर आपके लिए सोशलाइजेशन एजेंट हो सकते हैं। योर यूनिवर्सिटी इज सोशलाइजेशन एजेंट फॉर यू। योर शॉपिंग मॉल is socialization agent for you. The cafe, the restaurants, wherever you go, wherever you sit together, wherever you interact with everybody in such acceptable manners, so that is socialization agent. आगे चल के देखते हैं जी। So what did you learn and how did you learn from different kind of persons? For example, you're here, this is you are a young person, right? आप अभी छोटे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लाइक अभी आपकी एज होगी इस वक्त, अभी ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप 16, 17, 18, 19 सालों के हैं, 20 सालों के हैं, ऐसे ही ना, ये एज ग्रुप है ना आपका, 18, 20, 21, 19, राइट। So this is you as a young person, and here it is your friends, and the right side is your family. अच्छा जी, अब आपकी सोशलाइजेशन कैसे हो रही है अपने फ्रेंड्स से, और अब वहाँ से क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं, और अब अपनी फैमिली से सोशलाइजेशन कैसे आपकी हो रही है, और आप लोग वहाँ से क्या लर्न कर रहे हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। अब आपके फ्रेंड्स influence more expressive attitude and behaviors, your friends that influence your more एक्सप्रेसिव से मुराद क्या होते हैं, जो चीज़ें आप शो करते हैं, जो चीज़ें दूसरे बंदे को नज़र आ रही हैं आपकी, अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या लर्न करते हैं अपने उससे, दोस्तों से? यू लर्न अबाउट द स्टाइल्स, यू लर्न अबाउट द फैशन, राइट जी। आप जो ट्राउज़र है वो आपने बेल बॉटम पहनना है, वो नैरो बॉटम का पहनना है। आपने स्नीकर्स किस कलर के पहने, आपने जॉगर्स किस कलर्स के पहने, आपने ट्रेनर्स किस कलर के पहने, राइट। आजकल शर्ट्स का कौन से वाला स्टाइल है, शूटिंग में आप क्या करेंगे, वेस्ट कोट आपने किस तरीके से पहना है, अभी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं, ठीक है, अब अपने दोस्तों से सीखते हैं, राइट। बालों का स्टाइल किस तरीके से बनाना है, फैशन, फैड्स, इन आउट्स, एक्सेप्टेबल कंज्यूमर बिहेवियर, सो ऑल दीज थिंग्स, I mean, right from styles up to the acceptable consumer behavior, whatever that is, this is what you learn from your friends as a young person. You're here, you're a young person, here is your friends, and this is what you learn from your friends, right? तो ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड से सीखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. चलें चेक करते हैं ज़रा, ख़वातीन को चेक करते हैं किधर है। वेरी गुड, वी आर 41 टुडे, 40 टुडे। आई मीन दिस इज अ हैंडसम साइज फॉर द क्लास, दैट्स ग्रेट। लेट मी चेक हु इज हियर। Kinza Naz, who is Kinza Naz? Kinza, you listening me? Kinza? Kinza? Hello? Okay, let me check somebody else. Mariam Gul. Who is Mariam Gul? Mariam? Where is Mariam? Okay, where is Aisha? Aisha Mahmood. Yes, sir. Aisha, there is some problem with your internet, I think. The voice quality is not that Yes. good. Aisha, what we were discussing now is a young person. Aisha, there is background noise. There is background noise.
Aisha, okay, mute yourself. If you are not okay, if you're uneasy, mute yourself, please. ये कौन सा है जिन्होंने आई लव यू लिखा है स्क्रीन पे? ये किसको प्यार हो गया भाई? Who wrote this I love you? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा चले यार, ये स्क्रीन पे पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे हो आप लोग। सर ये ना मीटिंग की एडवांस सेटिंग से आप एनोनेट ऑन कर लें, फिर नाम आ जाता है अगर कुछ लिखता है तो, कोई भी लिखता है नहीं तो। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, बेशक लिखे, वो सब पूछ रहा हूँ। अब ये देखें पता नहीं क्या क्या डाल सर आप सेटिंग सही कर लें, वरना ये ऐसे लिखते जाएंगे, ये तो फिर पढ़ने ही नहीं देंगे। कोई इशू नहीं है। जवेरिया कौन है? जवेरिया मकबूल। जवेरिया मकबूल स्टूडेंट है। जवेरिया किस क्लास की है? मॉर्निंग से हैं सर। जवेरिया किधर है? जवेरिया बात करे जरा। अच्छा ग्रेट, एनीवे। अच्छा इसमें ये देखिएगा, दिस इज मदर एंड शी गॉट 2 किड्स, राइट। और यहाँ लिखा क्या हुआ? आई नो देयर लाइफ इज स्वीटर विद लेस शुगर। मैं जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मीठी है कम शुगर खाने से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चीनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कल परसों कुछ साल ठहर के आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी को ज़्यादा लंबे अरसे तक गुजारना है और खुशियों से गुजारना है तो फिर शुगर कम खाएं। नीचे लिखा हुआ 40% लेस शुगर with 100% vitamin C. So ये जो जूस है, it contains 40% less sugar and it contains more vitamin C. So बच्चों को ये चीज़ नहीं पता कि उनको कौन सा जूस पीना है, क्योंकि बच्चे तो हर मीठी चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला ब्रांड का जूस पियेंगे तो उसमें शुगर जो है वो दैट इज़ 40% लेस, वो विटामिन सी उसमें ज़्यादा है, राइट। सो मदर इज़ अ सोशलाइजेशन एजेंट फॉर द किड्स, ठीक है। रहीम साहब कर रहे हैं ये कुछ, रहीम साहब जो है 19 2 83 रहीम कर रहा है। रहीम कौन है? अगर बात करें मेरे से। रहीम कौन है? किस क्लास का है? सर राहिम मेरी क्लास का स्टूडेंट है, ये वो क्यों कर रहा है? इवनिंग बी क्या से। क्या तकलीफ हो रही है उसको? सर ये मैं कुछ कह नहीं सकता। रहीम बात करो यार, क्या मसला है? रहीम सर आई थिंक वो लीव कर गए। तो क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अच्छा एनीवे, सोशलाइजेशन एजेंट समझ में आया? इसको हम इरेज कर सकते हैं? मैं इसको कर सकता हूँ जाएगा ना? जी सर, हो जाएगा। Let me check. और सर ये जो जवेरिया इसे रिमूव कर दें, वो मॉर्निंग डी का सीआर कर है, हमारी क्लास से नहीं है। जवेरिया भी कौन कहाँ से आ गया? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सॉरी सर, वो फ्रेंड ने मोबाइल पकड़ लिया था, उसने दिए। वो इशू नहीं है। इसको अब इसको ठीक कैसे करना है ये बताओ, वो इशू नहीं है। सर मुझे तो ये भी नहीं पता। राहिम यहाँ पे एक छोटा सा पेन का ऑप्शन आ रहा होगा, उससे वो रिमूव हो जाएगा, उसके साथ ही इरेजर का होगा। भाई इधर तो कोई नहीं पेन का ऑप्शन आ रहा। आ गया आ गया।
अच्छा जी, सोशलाइजेशन इसको करें इरेज अगर आप कर सकते हैं। सोशलाइजेशन एजेंट सर मैं कह रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। सर हमारे से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। सर आप इस मीटिंग के होस्ट सर आपसे ही होगा, क्योंकि होस्ट आप कर रहे हैं ना इस मीटिंग को, तो एक सर आप एक मिनट करिए, मेरे पास ऑप्शंस हैं, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीटिंग इन्फॉर्मेशन, डिसेबल annotation for others, ये पता नहीं क्या है, hide names of annotators, hide floating meeting controls, share computer sound, optimize share, ये क्या है, check, draw scan, clear, clear all points, हो गया, ठीक है जी, चलो, यस सर। अच्छा चलो, अब ये मदर जी सर हो गया। यहाँ मदर की समझ में आ गई कि मदर एक सोशलाइजेशन एजेंट कैसे है अपने बच्चों के लिए, ये एग्जाम्पल समझ में है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, द स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर सोशलाइजेशन, कंज्यूमर रियली सोशलाइज कैसे करता है। देयर आर 3 स्टेजेस, वन इज परसेप्चुअल, सेकंड वन इज एनालिटिकल, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, परसेप्चुअल क्या है? परसेप्शन आई मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर परसेप्शन, दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, यही होता है ना परसेप्शन। जब आप 3 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे होते हैं, right? During which the children begins to distinguish ads from the programs, associate brand names with product categories, and understand the basic script of consumption. परसेप्शन क्या होता है? बच्चे मतलब आप लोगों की फैमिली में अगर कोई छोटा बहन भाई है या आपके चचा के या फैमिली में जो और बच्चे हैं, अगर आप देखें, अगर आपको बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, तो जो बच्चे तकरीबन 7-8 साल तक के बच्चे इतने आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, उनका एक्सपोजर टेक्नोलॉजी से और मीडिया से भी ज़्यादा रिलेटिवली हमारे मतलब जब हम थे तो मोबाइल्स नहीं थे। आजकल बच्चे तो पैदा होते ही मोबाइल्स से ओरिएंटेड होते हैं, टेलीविजन और लैपटॉप्स की सारी एक्सेस है। तो अच्छा, बच्चों को जब टॉयज़ लेने जाते हैं शॉप पे, या उनको आपने कैंडीज या उनको आपने लेस या उनको आपने स्नैक्स कोई भी, ये स्लैंटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो बच्चों को बड़ा पता होता है कि जी मुझे इस ब्रांड का लेस का ये फ्लेवर और स्लैंटी का ये वाला फ्लेवर, ये वाला कलर ज़्यादा पसंद है और मैंने ये लेना है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। कैसे होते हैं? जी सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उनको और किसी चीज़ पे लाइक उनको आपने बॉल लेके देनी है, या आपने बैट लेके देनी है, या आपने कोई एयरप्लेन्स लेके देने हैं, या उनको दूसरे टॉयज लेके देने हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, वो कहेंगे जी नहीं, मुझे इस शॉप से ये वाला बैट अच्छा मिलता है, उस शॉप पे बैडमिंटन के लिए रैकेट बड़ा अच्छा मिलता है, उस शॉप पे बॉल्स अच्छी मिलती है, उस शॉप से मिलती है। सो इसका मतलब ये है कि वो परसेप्चुअली 3 से लेकर 7-8 साल तक का बच्चा वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना शुरू हो जाता है चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, एड्स को वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। एनालिटिकल, जब आप 7 से 11 साल के हो जाते हैं एक बच्चा, अब हम उस बच्चे को एज अ कंज्यूमर ओरिएंटेट कर रहे हैं और उसकी कंज्यूमर सोशलाइजेशन पे बात करना चाह रहे हैं ना। वो बच्चा बड़ा होकर जा रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो कंज्यूमर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एनालिटिकल में क्या, ड्यूरिंग व्हिच द चिल्ड्रन कैप्चर द परसुएसिव इंटेंट ऑफ एड्स। अच्छा, अब वो जरा चीज़ों को समझता है। वो जब एक ऐड देखेगा बिस्किट का, ऐड देखेगा किसी खेलने वाली टॉय का, ऐड देखेगा किसी जूस का, या ऐड देखेगा वो किसी जूते के ब्रांड का, राइट, स्कूल बैग्स का, तो वो आपको कहेगा कि जी मैंने वो जो चीज़ टेलीविजन में मैंने देखी है मुझे वो खरीदनी है। ठीक है, मैंने ये वाले जूते लेने हैं, मैंने ये वाला खिलौना लेना है, ठीक है, जो मैंने ये वाला एनर्जी ड्रिंक लेना है, ये वाला मैंने बोतल लेनी है, ये वाला मैंने सॉफ्ट ड्रिंक लेना है। सब एनालिटिकल हो जाता है, वो चीज़ों को एनालाइज करने शुरू हो जाता है। और रिफ्लेक्टिव में वो जब बड़ा हो जाता है ना, 11 से लेकर 16, 17, 18 तक, जैसे वो एक एडल्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले का, which can children understand it pricing tactics, if he becomes skeptical about the ads, understand complex shopping scripts, and become capable of influencing purchases, तो फिर वो आपके अच्छे खासे परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। वो आपके साथ आर्ग्यू करता है, वो रीजन करता है आपके साथ कि जी मैंने ये प्रोडक्ट खरीदना है तो ये मैंने क्यों खरीदना है, ये मैंने इसलिए खरीदना है, मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लेना क्योंकि इसके ये फीचर्स नहीं है, क्योंकि इसके कलर अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी मुझे ये वाली चीज़ पसंद है, राइट।
सो दिस इज हाउ कि आप परसेप्चुअल एनालिटिकल रिफ्लेक्टिव। फिर उसके बाद जब आप 16 साल से ऊपर चले जाते हैं फिर आप एडल्ट कंज्यूमर हो जाते हैं। फिर आपको खुद से ये तमीज़ हो जाती है कि आपने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कितने पैसे हैं आपके पास, क्या आप खरीद सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ जब बोलने को। चलें, ये वाली एक स्टेज देखिएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इट गोज अप टू स्टेज 5। राइट, अब ये 5 स्टेजेस में क्या ये चीज़ें वही हैं, मतलब हम सब बच्चे भी थे, अब हम सब कंज्यूमर्स भी हैं। तो ये हमारी अपनी कहानी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज हाउ कंज्यूमर सोशलाइजेशन evolves, and this is how the family impacts consumer and consumer attitude. Stage 1 में कहते हैं शॉपिंग विद पेरेंट्स एंड ऑब्जर्विंग। कहते हैं कि जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे जाते हैं और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते, रीजन नहीं कर सकते। पहली चीज़ क्या है, 12 से 15 महीने जब आप तकरीबन 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक के होते हैं, तो जाहिर सी बात है 1.5 साल के बच्चे घर पे नहीं छोड़ा जा सकता। आप कहीं जाएंगे तो वो गाड़ी में हर जगह पे आपके साथ जाएगा। वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखें तो है ना, वो देख रहा होता है कि जी आप क्या खरीद रहे हैं, आप किस मॉल में गए हैं, आप ग्रॉसरी बाय कर रहे हैं, आप गारमेंट्स बाय कर रहे हैं, फुटवेयर बाय कर रहे हैं, टॉयज बाय कर रहे हैं, whatever you are buying, that is observing, right? तो यहाँ पहली स्टेज पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है। स्टेज 2, शॉपिंग विद पेरेंट्स एंड मेकिंग रिक्वेस्ट। अच्छा जी, अब आप अपने वालिदैन के साथ ही जा रहे हैं, शॉपिंग अभी भी आप अपने वालिदैन से ही करवा रहे हैं या आपके वालिदैन ही आपके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने ये लेना है। ठीक है, अब आपकी उम्र कितनी होगी है, 2 से 3 साल। अब जो 2 साल का बच्चा होता है ना सर, वो अच्छी खासी लड़ाई करता है आपसे, वो अच्छी खासी जिद करता है। ठीक है, वो क्लियर कट अपनी चॉइस बताता है कि आप उसको ये चीज़ चाहिए, उसको ये चीज़ नहीं चाहिए। आप उसको मतलब की चीज़ नहीं देंगे तो आपसे नाराज़ होगा, लड़ेगा, चीज़ें उठा के मारेगा, ऐसे होता है। यस सर। ठीक है, अब ये स्टेज 2 है, जब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जारी बात है, अभी 2-3 साल के हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए रो सकते हैं। अच्छा, तीसरी स्टेज पे क्या होता है, शॉपिंग विद पेरेंट्स एंड मेकिंग सम सेलेक्शंस। अभी भी आप शॉपिंग के लिए अपने वालिदैन के साथ ही जाएंगे, यू आर गोइंग टू शॉपिंग विद योर पेरेंट्स बट यू आर मेकिंग सम सेलेक्शंस। 3 से 7 साल, अब जाहिर सी बात है, अब 7 साल के हो गए हैं, अब आपको थोड़ी सी अकल भी आ गई है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत बेहतर हो चुकी है। अब आपको ये तमीज़ आ गई है कि आपको रेड कलर का स्वेटर बाय करना, ब्लू कलर का स्वेटर बाय करना, आपको व्हाइट कलर के जूते पसंद है, आपको ये वाला पिज़्ज़ा पसंद है, आपको ये वाला बर्गर पसंद है, आपने वहाँ से आइसक्रीम खानी है, राइट। अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगेन आप अभी भी डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे। ठीक है, योर पेरेंट्स नेवर टेक यू टू द शॉपिंग मॉल, राइट। आप खुद से नहीं जाएंगे, 7 साल का बच्चा कभी भी खुद से निकाल के शॉपिंग करने नहीं जाएगा। हाँ, आसपास कोई दुकान है मोहल्ले वाली गली में, वहाँ वो जा सकता है, बट वो एक इंडिपेंडेंट शॉपिंग डिसीजन नहीं करेगा। अच्छा जी, शॉपिंग इंडिपेंडेंटली, स्टेज 4 पे आप इंडिपेंडेंटली शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। 7 से 11 साल, 11 साल के बच्चा हमारे यहाँ शायद, मतलब 11 साल के बच्चा भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन छोटी मोटी शॉपिंग जो है ना, चीज़ें घर का सौदा से लेकर ये वो उसमें जाके, लेकिन 11 साल का बच्चा भी अभी अपने कपड़े नहीं खरीदता हमारे यहाँ। बाहर गोरों के बच्चे वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो चले जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो जाके अपनी चीज़ ले आते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ 2 नंबरी भी नहीं होती। यहाँ बच्चों को भेजें पैसे देते हैं, पहली बात है रास्ते में कोई पैसे छीन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो खैर खैर से पहुँच गया तो जो वो है दुकानदार, वो उसको थोड़ा सा पैसों में गिरा करवाएगा। ये चीज़ें होती हैं वहाँ, अगर ऐसा काम है फ्रॉड से इस तरह की चीज़ें काम है। एंड कम्प्लेक्स शॉपिंग एंड स्केप्टिसिज्म, राइट। स्टेज 5 पे जब आप 11 से 16 पे हो गए, सो आप क्या हैं, टीनेजर्स हैं, राइट। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग गए हैं, और 16 साल का बच्चा जाके बेशक अपनी साइकिल खुद खरीद ले, राइट। वो बेशक जाके अपने जूते जॉगर्स वो देखे, उसको पसंद आए, उसका मटेरियल देख ले, फैब्रिक देख ले चीज़ों का, उसकी प्राइस को एवेल्युएट कर ले, 2-4 दुकानें फिर ले, उसको मुमकिन है इतनी तो समझ आ जाए। तो दिस इज हाउ, ये कुछ स्टेजेस होती है जब कंज्यूमर सोशलाइजेशन में जा रही होती है।